Good morning, children. So, we are meeting in second lecture of poems 5 and 6. Here, as I told you, poems are very short, right? And that is why we are connecting poems together. Now see, today's poem, the ball poem, is poem number 5. And Amanda is poem number 6. Now let us talk about ball poem. Here the central idea of this poem is that a child is playing in open park, playing with a ball. And suddenly his ball gets into water body that is called pool. Now what happens? Poet John Barrymore, right? He's sitting over there underneath a tree and seeing all the activities. He is studying different, this you can say body language of that child. How anxious he is about to procure the ball. How much he loves that ball. See, in childhood, you also played with different toys, right? And sometimes, some toys are very dear to you. And once you lose that, आपको भी मालूम होगा जब आप खिलौनों से खेलते होगे बचपन में, अगर कोई खिलौना खो गया या टूट गया तो कितना दुख होता था. तो ये सब बचपन की यादें हैं. It is a poem connected to childhood. Understood? बच्चा बॉल गवा देता है, वापस ले लेता है, but what does it teach you? That is the main essence of the poem. Now, let us see. Glossary is given, right? Glossary is given there, and that we are to learn it out. Now, first of all, we will study summary, page number 65. Then we will come on thinking about the poem. The poet is talking about a little boy who has lost his ball. Where that ball has gone? Into water body. It has fell into the water body. He was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. खेलते खेलते उसके हाथ में से वो बॉल छटक गया और पानी में गिर गया. बराबर? The poet says this. Sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to his situation. मैंने अभी आपको बोला ना, उधर बैठे बैठे पोएट सब देख रहे थे. जब वो बच्चा बॉल से खेल रहा था, अब अचानक बॉल उसके हाथ में से छटक गया, छूट गई और वो पानी में गिर गया. वो कितना डर गया था क्योंकि वो अपनी फेवरेट बॉल वापस पाना चाहता था. राइट? He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball has gone. He was sad and was trembling with fear. रितसर का ध्रुजता था वो लड़का. He was shaking with fear. उसके हाथ पैर ध्रुजते थे. He got so immersed in sorrow that he kept standing near the harbor for a long time and kept on looking for his ball. क्योंकि पानी शायद थोड़ा गहरा था, बच्चा डर गया था. उसकी नजर बॉल पे ही थी. बॉल तो अंदर हवा होती है इसीलिए तैरता था. बच्चा उसको देख देख के इतना परेशान होता था, इतना दुखी होता था जिसकी कोई माप ही नहीं था.
अंदर से बहुत दुखी था. The poet says that he could console him that he might get new ball, or he could give him some money to buy another ball. बच्चा बहुत दुखी था. पोएट को भी थोड़ी दया आ गई. उसको भी ऐसा लगा कि चलो बच्चे के पास जाते अथवा बच्चे को इधर बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा नाराज मत हो, चलिए मैं थोड़े पैसे आपको देता हूं बॉल के, आप बॉल नया बॉल ले लो, नया बॉल से आप खेलो, उसमें क्या है, लेकिन अब ध्यान से संभल के रखने का. लेकिन पोएट को ऐसा लगा कि ये करना गलत बात है. क्यों गलत बात है? क्योंकि इससे तो वो बच्चा बिगड़ेगा, क्योंकि इससे उसकी जिम्मेवारी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसमें से वो मुकर जाएगा. क्योंकि वो ऐसा सोचेगा, चलो अगर कोई चीज हम गवा देते हैं तो हमको नई चीज मिल जाएगी, वो अपनी जिम्मेवारी में से छटक जाएगा. है समझ में? वो छटक जाएगा. और इसीलिए ये कतई नहीं होना चाहिए कि उसका बॉल वो गवाए. है समझ में? तो पोएट को जो मदद करने का इरादा था वो थोड़ा ठंडा हो गया और देखते रहे. बट he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball but not bring the memories and feelings attached to the lost ball. नया बॉल तो मिल जाएगा, लेकिन पुराने बॉल से उसका जो लगाव है, उसकी जो यादें हैं, क्योंकि इससे पहले वो बॉल लेके उसने कई जगह पे खेला होगा, राइट, कई जगह पे बॉल का यूज किया होगा. तो वो जो यादें हैं वो कहां से लाए? दूसरा बॉल मिल जाएगा, जैसे नया बॉल मिलेगा पुराने बॉल की यादें भी चली जाएगी, बच्चा अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा. He further says that the time has come for a boy to learn his responsibilities. Understood? ये माँ बाप के नाम बच्चों का संदेश है. माँ बाप जब बच्चे को ओवर पैम्पर करते, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते, तो आगे जाके वो बच्चा हैरान होता है. बच्चे को ऐसे नहीं, उसको समय समय पे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी ही पड़ती है. अगर आज आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो वो कल क्या करेगा? कब अपनी जिम्मेवारी स्वीकारेगा? कब ही विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? सही बात है ना? Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of his life. ये बॉल उसने गवाया है जो उसके जान से प्यारा था. गवाने के बाद उसको उसकी जिंदगी का सबसे अहम सबक मिल गया कि कैसे चीजें को संभाल के रखनी पड़ती है, कैसे एक बार जो हमको चीज मिलती है वो गवाने का दुख क्या होता है. कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई चीज ली, एफेजली उसका यूज किया और गवा दी. The poem, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. क्योंकि जो बंदा ये दुनिया में आता है उसको जाना तो पड़ता है. ये बॉल गंवाने से उसको जिंदगी का सबसे अहम पाठ पढ़ने को मिला, लेसन मिला. चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर. जो हमारे पास आज है उसको एक दिन हम गंवाने वाले हैं, चाहे हमारे
माँ बाप क्यों ना हो, चाहे हमारे भाई बहन, सब जैसे जैसे समय बढ़ता है सब अलग अलग हो जाते हैं, सब एक के बाद एक दूसरे का साथ छूट जाता है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं अकेले इस दुनिया में आए थे और अकेला ही जाने का है। लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। है समझ में? वेरी ब्यूटीफुल टचिंग पोयम। नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ पोयम। एक मीनिंग लिख लो, एपिस्टेमोलॉजी। A Greek word epitome means knowledge. Epistemology is a study of nature to knowledge itself. क्योंकि सब समय हमको सिखाता है। हमने देखे कई नेस्ट में जब एक छोटी सी चिड़िया एग्स ले करती है, वो अपने एग्स को वो खूब ध्यान रखती है, हैच करती है। कई दिनों के बाद उसमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं, पूरा वातावरण किलकिला जाता है क्योंकि सतत उसकी आवाज आती है। चिड़िया मेल फीमेल दोनों इधर उधर उड़ उड़ के बच्चों के लिए खाना लाते हैं, फीड करते हैं उसको, और नेस्ट में ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। पहले उसकी आंख खुलती है, लेकिन जब वो छोटे हैं ना, छोटे, आपने चिड़ियों का बच्चा देखा होगा, उसकी आंखें, चांच सब बंद होती है, पांख सब बिल्कुल छोटे छोटे। सबसे पहले वो मान लो 8-10 दिन के हो गए, सबसे पहले उसकी आंख खुलती है, छोटी छोटी वो चांच खोलते हैं ताकि माँ और बाप उसको मुंह में खाना खिलाते हैं, निवाला देते हैं। जो चिड़िया बाहर से ढूंढ के लाती है वो बच्चे के मुंह तक जाता है। फिर 10-15 दिन के बाद बच्चे अपनी पांखें फफड़ाते हैं। ऐसा तकरीबन यह सिलसिला चलता रहता है, बराबर। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तब पहली बार वो अपने घोंसले में से बाहर की दुनिया का उड़ान भरते हैं। पहली बार उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है बाहर की दुनिया की, और पहली उड़ान वो लगाते हैं और दुनिया में चले जाते हैं, अपनी दुनिया में। जो बच्चे घोंसले में से उड़ान भर के गए वो अपनी दुनिया बसाएंगे, अपने आप जीना सीख लेंगे, वापस कभी वो घोंसले में नहीं आते, बराबर है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ऐसा पड़ाव है, कई पड़ाव ऐसे आते हैं कि आज हम साथ हैं, कल बिछड़ जाते हैं। तो इट इज अ रूल ऑफ नेचर एंड दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। That is called epistemology, right? And in that epistemology you have to learn all the things, okay? So let us go through the poem. What is the boy now who has lost the ball? What he is going to do? I saw it go. Direct poem शुरू होती है, राइट? पोएट बैठा है, देखता है, जब बच्चे का बॉल पानी में गिर गया तो वो सोचता है अभी ये बच्चा क्या करेगा, कैसे संभालेगा सिचुएशन को। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग। बॉल कभी मैरिली बाउंसिंग नहीं होता, बाउंस होते 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 बच्चे के हाथ में थे, वो छटक के बाउंसिंग होते 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 वो चला गया देयर इनटू द वाटर।
O used to say, oh, there are other balls. And ultimate shaking grief fixes the boy. बच्चा देखता है, पोएट देखता है, बच्चा कैसे मैनेज करेगा. बच्चे के लिए उसके मन में बहुत ग्रीफ है, बहुत सैड है, क्योंकि इसका सबसे प्यारा चीज पानी में चला गया, बहुत दुख है. तो एक सेकेंड पोएट को ऐसा लगता है कि चलो इस बच्चे को ज्यादा दुखी नहीं होने का है, हम उसको नया बॉल दिलवा देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं. राइट? नो यूज्ड टू से, ओ देयर आर अनदर बॉल्स. एक सेकेंड विचार आया था मन में, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि वो बच्चे को जिम्मेवारी संभालना चाहता था कि अगर हर बार वो चीज खोता रहा, गवाता रहा, और उसको हर बार पैसे दे के नई चीजें लाई गई, तो वो कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकारेगा नहीं. है समझ में? नो यूज्ड टू से, oh, there are other balls. And ultimate shaking grief fixes the boy. That means boy is very sad, standing near that water body, standing on the edge of that pond. He is staring at the ball. He is feeling extremely sad from inside. कि काश मेरी खिलौना मेरे को वापस मिल जाए. And he stands rigid, trembling, staring down. Staring down એટલે looking. एक नजर से वो पानी में जो तैर रहा है बॉल, बीच में, तालाब के बीच में, उसको देखता रहता है. कई सारे थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं कि काश ये मेरा बॉल मेरे को वापस मिल जाए. Trembling, staring down. All of his young days into the harbor where his ball went. Harbor means water body, right? This child, actually, ये लाइन का मीनिंग what है? बच्चा. All his young days means बच्चा. वो बच्चा एक नजर से पानी की ओर देखता है, अपना बॉल वापस लाना चाहता है, राइट? और इसीलिए वो सोचता है कि भाई ये बॉल मैं कैसे वापस ले लूं, कहां से वापस लाऊं. आई समझ में? इस बॉल वेंट. आई वुड नॉट इंक्लूड हिम. उसका मीनिंग आप देखो. इंक्लूड એટલે एनकरेज, टू एंटर द सिचुएशन. अभी ये सिचुएशन है, मेरे मन में एक विचार आया था मैं बच्चे को मदद करूं, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया है, मैं उसको मदद नहीं करने वाला हूं. तो अगर मैंने उसको मदद की तो वो चीज की कीमत भूल जाएगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर जाएगा, वो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा नहीं. सो आई डोंट नो टू हेल्प हिम. मैं उसको मदद नहीं करूंगा. Yes. I would not intrude on him. A dim, another ball is worthless. Dim means by. एक सेकंड जो पोएट के मन में विचार आया था ना कि बच्चा बहुत नाराज है, दुखी दिखता है, कि चलो उसको खुश करने के लिए थोड़ा पैसे दे दूं ताकि वो दूसरा बॉल ले आए. लेकिन उसको दूसरी सेकंड ऐसा लगा कि अगर ऐसा हुआ तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल जाएगा, और वो बॉल के साथ जो उसकी यादें है, उसका जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो भी खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा. तो ये तो नहीं होना चाहिए है? His ball went. I would not intrude on him. A dim another ball is worthless. Now he senses first responsibility. ये बॉल गंवाने के बाद ये बच्चा अपनी पहली बार अपनी जिम्मेवारी सीखा. मतलब उसको अपनी जिम्मेवारी का पहली बार एहसास हुआ. क्या एहसास हुआ? कि हमको हमारी चीजें
संभाल के रखनी चाहिए, उसका संभाल के यूज करना चाहिए। अगर इफ वी यूज इट हैफेजर्डली विदाउट एनी केयर, केयरलेसली, तो हम वो चीज गवा देंगे, फिर हमको कोई मदद नहीं करेगा। He sends his first responsibility. In the world of possession, possession means competition. ये पूरी दुनिया में आप देखो कितनी कंपटीशन है, जहां भी जाओ आप कंपटीशन, और यही कंपटीशन के एनवायरमेंट में हमको जिंदा रहना है, अपनी दुनिया बनानी है, कुछ बनना है, कुछ करना है। इट इज नॉट अ इजी थिंग, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता भैया। अगर आप सोचते हो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, बैठे बैठे सब कुछ कर लेंगे, तो ये भूल है। कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, बहुत गंवाना पड़ता है। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू लूज एवरीथिंग। सब कुछ गंवाने की तैयारी रखो, तब जाके हमको कुछ मिलता है, सफलता मिलती है। बैठे बैठे बातें कर करके ये सब नहीं मिलता भैया। पीपल विल टेक बॉल्स एंड ही विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कितनी बार वो गवाएगा, लोग उसको मदद करेंगे। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन अपाहिज हो जाएगा, मेंटली, नॉट बाय फिजिकली, क्योंकि वो अपनी चीजें नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर खो गई तो दूसरी आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Balls, lost always. The little boy, and no one buys a ball back. Money is external. हर बार कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी मदद आपको खुद को करनी पड़ेगी। God always help those who help themselves. ईश्वर भी उसकी ही मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं, बाकी भगवान भी नहीं बचाता। जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एक्सेप्ट करता उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, उसकी मदद भगवान भी नहीं करता, तो इंसान तो कैसे करेगा? है समझ में? He is learning, and no one will buy ball all the times. यस, इधर बॉल की बात नहीं है, कुछ और भी बात है। जैसे जैसे वो चीजें गवाता जाएगा वैसे वैसे लोग उसको नहीं दे देंगे, तो एक दिन तो वो भिखारी हो जाएगा, भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट उसका चला जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा? मनी इज एक्सटर्नल, राइट? मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मनी, पैसे से दुनिया नहीं चलती। कई बार हम देखते हैं ना, बच्चा रोता है, कोई चीज गवाता है, पेरेंट्स पैसा दे के चुप कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये बिगाड़ते हैं पेरेंट्स, ये अच्छी आदत नहीं है। माँ बाप को सिखाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। He is learning well behind his desperate eyes. ये बॉल गवाने से उसको एक जिंदगी का सबक मिला। आंख में नमी थी, दुख था, क्योंकि सामने उसकी प्रिय चीज फंसी हुई थी। फिर भी उसने जिंदगी का एक अहम पाठ सीख लिया कि आज जो हमारे पास है उसको गंवाने की मेंटल तैयारी रखनी पड़ती है। एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट ऑन दिस अर्थ। कुछ ना कुछ चीजें अपने समय के हिसाब से अनुसार हमसे चली जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब समय की कठपुतलियां हैं। जैसे जैसे समय हमको नचाता है हम सब नाचते हैं।
क्योंकि समय के आगे किसी का नहीं चलता. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss. Epistemology means loss, eternal loss. अपना खुद का नुकसान. And how to stand up. अपना नुकसान तो उसने किया है, अपना खुद का नुकसान, तो वो नुकसान में से कैसे वो भरपाई करके उबार आना. मतलब अगर हम गिर गए हैं तो हम खुद कैसे उठ सकते हैं. है समझ में? How to stand up, knowing what every man must one day know, and most known is how to stand up. अगर जल्दी हम ये सीख लेते हैं तो बात सही है. अगर हम ये नहीं सीख लेते तो समय हमको सिखाता है. लेकिन सीखना तो पड़ता ही है भैया, उसमें कुछ नहीं चलता. समझ में? राइट? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. अगर कल सीखना है तो उसकी वजह जो आज सीख लो ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड मोस्ट नोइंग मेनी डेज हाउ टू स्टैंड. ओके, ये बात पोएम नंबर 5 की थी. अभी आप आ जाओ पोएम नंबर 6 में. फनी पोएम, फनी पोएम. रॉबिन केलिंग, अमांडा. उसकी समरी अब देखो. एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. बार बार पेरेंट्स टोकते रहते हैं ना. यू टू फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड. बच्चे लोग को बार बार बोलते हैं तो बच्चे लोग को ऐसा लगता है कि हमारी आजादी छीन जाती है. बार बार मेरे को टोकते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. पेरेंट्स हमारी भले के लिए हमको बोलते हैं. राइट? राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स डजंट अलाउ यू टू डू. सी द लाइन. अब कोशिश करना है कि वो आप करना कुछ चाहते हैं और पेरेंट्स आपको नहीं करने देते. तो ठीक इसी तरह ये एक छोटी बच्ची, बहुत परी जैसी बच्ची अमांडा, बहुत शरारती है. उसकी पोएम है. इतनी मस्तीखोर है, इतनी शरारती है कि उसको बार बार पेरेंट्स से कन्फ्रंटेशन होता है और फिर भी पेरेंट्स डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो भी वो लड़की अपनी दुनिया में मस्त होती है. राइट? ग्लोसरी में मीनिंग्स दिया है. राइट? लैंग्विड. लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड. ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली. पैटर्न, मेकिंग पैटर्न्स एंड ट्रांक्विल, मेक क्वाइट. अभी थिंकिंग ओवर टेक्स्ट में हाउ ओल्ड इज अमांडा एंड हाउ डू यू नो दैट. तो उसमें देखो ये दिया गया है. अमांडा's एज could be between 10 to 12 years. We can guess it because of the reference of the mermaid or Rapunzel. Rapunzel એટલે जल मछली. बराबर? जल की मछली होती है ना, मरमेड. उसकी उम्र शायद 10-12 साल की होती है. These stories are read to the children of the group of 10 to 12. Right? ऐसे ऐसे है. तो let us start with poem. Funny poem. Don't bite your nails, Amanda. उसका मतलब क्या होगा? वो अपने नाखून चबाती होगी. Don't hunch your shoulders, Amanda. hunch मतलब अपने शोल्डर को ऐसे ऐसे यूं यूं हिलाना. राइट? कई बच्चे लोगों को कई विचित्र विचित्र आदत होती है. आप में भी कोई आदत होगी. कोई बैठे बैठे सो जाता है, कोई बैठे बैठे ऐसे झोंका लगाता है, कोई बैठे बैठे अपने नाखून चबाता है. राइट? हम देखते हैं
कई बार तो बच्चे लोग 5-5 मिनट ऐसे हाथ फैला के आलस लगाते हैं, जैसे 3-4 दिन का एक्सट्रीम वर्क करके थक गए हैं। अरे भैया 5 मिनट भी काम नहीं किया होता। ये बच्चे लोग का आदत होता है। और ऐसे ऐसे जो अमांडा जो प्रैंक्स करती है, वो प्रैंक्स अटकाने के लिए उसकी मम्मी उसको बार बार टोकती रहती है, राइट? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंट योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स ड्रैगिंग, राइट? ऐसे बच्चे फूस के बैठ जाते हैं ना, गुजराती में हम क्या बोलते हैं, टूटी वड़ी ने बेसवू है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट अमांडा, सीधे बैठ जाओ आप। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स्ड। एमरल्ड सी, अमांडा ऐसे सोचती है, बिल्कुल शांत दरिया का पानी है, हीरो मोतियों से भरा हुआ सागर है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, द मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। एक साइड उसकी मम्मी पापा उसको गुस्सा होते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये लड़की ऐसे सोचती है कि वो कोई दरिया किनारे पहुंच गई है, कोई आइलैंड पे, बिल्कुल ब्लूइश वाटर है, ग्रीनिश वाटर है, शांत समंदर में ढेर और टोपाज, एमरल्ड, रूबीज, डायमंड्स, ये सब प्रेशियस स्टोन्स दिखते हैं बीच पे, और वो अकेली मरमेड की तरह वो साफ सुथरे पानी में मस्ती कर रही है, मतलब तैर रही है। कैसे कैसी उसकी इमेजिनेशन है, देखो तो सही कहां तक उसकी इमेजिनेशन जाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू कीप योर शूज अमांडा। बराबर है, मम्मी चिल्लाती है, काम कर लिया, होमवर्क कर लिया? अपने जूतों को मैंने बाहर रखने को बोला था, पूरा घर गंदा कर दिया मिट्टी लाके। लेकिन वो क्या सोचती है, आई एम ऑर्फन roaming in the street, up a pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. जब मम्मी उसको चिल्लाती है तो वो क्या सोचती है, वो एक अनाथ बाला के रूप में इधर उधर गलियों में घूमती है, जिसके पैर में चप्पल जूते नहीं है और ढेर सारी मिट्टी उस पैर पे लगी होती है, ऐसा वो सोचती है, राइट? यस। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने मीन्स पिंपल्स। बहुत चॉकलेट खाएगी ना पिंपल्स हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा? उसका मतलब क्या हुआ, मम्मी खिजाती है, चिल्लाती है, तो भी वो इधर उधर अपना ध्यान भटकाती है, मस्ती में ही लगी रहती है, इसलिए मम्मी बहुत चिल्लाती है, राइट? यस, आई एम Rapunzel. Yes, this Rapunzel is a story of a girl who was captured by a witch. Witch means डाकण। बहुत सुंदर सी लड़की थी, राजकुमारी थी। उसको एक दिन डाकण उसके साथ ले गए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, द ओल्ड विच क्लाइम्स अप द टावर विद द हेल्प ऑफ Rapunzel's very long hair, which she leads her to the window of a tower. उसको टावर में कैद कर दिया। उसके इतने बड़े बड़े लंबे बाल थे कि ऊपर बैठे बैठे उसके बाल नीचे आते थे, और रोज डाकण उसको उधर कैद करके बाहर जाती थी शिकार करने, तो उसके बाल के जरिए वो नीचे उतरती थी, ऊपर जाती थी। और एक दिन ऐसे ही इसकी बाल के जरिए एक राजकुमार आया, डाकण से लड़ाई किया, डाकण को मार दिया, और Rapunzel को बाहर ले जाके उसके साथ शादी रचाई, राइट? Rapunzel, very long hair, she read down to her. One day, a prince visits her by climbing the tower with the help of her hair. When the witch comes to know this, she separates both of them.
But Rapunzel and Prince met after a gap of many years and then lived happily forever. राजकुमार और डाकण के बीच में लड़ाई, डाकण को मार दिया. Right? Now, Amanda wants to be Rapunzel because she knew that in the story there was no stairways to enter the tower. It was only possible with Rapunzel's long hair that she could come down and help others to climb. Amanda feels that life in the tower will be very calm and nice, and also makes the point never to let her down and disturb to the visitors. Right? तो ऐसी कुछ बात है. I am Rapunzel. I have not to care. Life in the tower is tranquil and rare, and I will certainly never let my bright hair down. मैं Rapunzel तो राजकुमारी मूर्ख थी, इसीलिए अपने बाल नीचे पाथर के बैठी थी. मैं ऐसी मूर्ख राजकुमारी नहीं हूं, मैं तो अपने बाल संभाल के रखूंगी. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking के लिए talking nonsense. You are always so moody, Amanda. Anyone who think that I nagged at you, Amanda, nagged at ले shouted at you, Amanda. मतलब ये सीधी सादी लड़के की शरारत है, मिस्चीवियसनेस है, और उसकी ये पोएम बनी है. Right? Now it is the time to take your homework. Come on. Question number 1. What do you think is speaking to her? Who in the poem is speaking to Amanda? Right? Question 2. Amanda, an orphan. An orphan. How does she know so? How does she know so? Right? Question 3. What is the message that the poet wants to convey? What is the message the poet wants to convey through the poem, the ball poem? राइट? ये 3 क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में भेजने हैं. Who in the poem is speaking to Amanda? मतलब कौन उसको डांट रहे हैं. Number 2, Amanda an orphan? How does she know that? Amanda अपने आप को अनाथ क्यों समझने लगी है? कैसे, क्यों ऐसा लगा उसको? तीसरा, what is the message the poet wants to convey through the poem, the ball poem? बराबर है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं, और इसके साथ ही हम अपना पोएम सेक्शन इधर खत्म करते हैं. क्या क्या आपके फर्स्ट टर्म में आपको 6 लेसन है और 6 पोएम्स है. तो इन फर्स्ट लेक्चर आई हैव डिलीवर्ड poem number 3 and 4, and in second lecture it will be poem 5 and 6. So we are ending this. See you next lecture. Till then, goodbye. Take care.